All right. So, hi everybody. Please confirm that you can see me, you can hear me, and you can also see my screen. Please confirm. Yes, Yes. sir. Okay. So, let's have a very short webinar on the cap rounds. Okay. Now, we have divided the entire webinar into two parts, that is part 1 and part 2. And I think I have already told you what will be doing in each part. So in today's webinar, what we'll be doing is we'll be trying to understand the preparatory stage which you need before the cap rounds. यानी cap round के पहले 13th October से पहले तुमको क्या करना है ये आज समझेंगे. But before that, very quickly, please understand what is the motive of keeping this particular webinar. So please understand one thing: no matter what is your percentile, our aim is to get the best college for the percentile which you have. So hoga kya ke if you follow the steps which I am telling you today, then instead of getting, let's say, college number 10, you may end up getting college number 9, or instead of getting college number 6, you may end up getting college number 4 or 5, something like that. So that is the aim over here, to get the best college. That is the aim over here, to get the best college depending on your particular percentile. Now, I hope you already know by now that your entire admission process is divided into two phases. जो पहला phase है ना, उसको बोलते हैं online application form, which got over on 4th of October. Okay, so I hope you all have done the process of registration by 4th of October. अगर तुमने 4th October तक registration नहीं किया है, so you are not eligible for the cap rounds, although you are still eligible for the institute quota. Okay, जिसको हम short में IQ बोलते हैं. Alright, moving further. अब वो फेज तो हो गया, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. Now we'll talk about the phase 2 of the admission process, and the phase 2 of the admission process is called cap rounds. Now this time, for a change, there is going to be 3 cap rounds: cap round 1, cap round 2, cap round 3, and उसके बाद एक vacancy round भी होगा. तो इसके सबके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे. So then the next question is, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? So let's understand that. Now, as I told you, the entire webinar, यानी आज का webinar and the next webinar, is basically divided into two parts. So in part 1, that is today, we are going to talk about how to prepare the options list wisely. And trust me guys, ये जो admission का पूरा खेल है, okay, ये इसी पे dependent है. अगर तुमने option list ठीक से बनाया, then you will end up getting a better college than what you were supposed to get. So today we'll focus on how to prepare the options list wisely. And in part 2 of the webinar, ये जो part 2 है वो मैं आज नहीं लूंगा, वो मैं 2-3 दिन के बाद लूंगा. क्यों 2-3 दिन के बाद लूंगा वो भी बताता हूँ. So in part 2 of the webinar, we'll talk about the actual procedure which will be carried out on the CET Cell website. So in the part 2 of the webinar, what I will do is I'll show you some screenshots. Okay, I will explain you the procedure. I'll explain you what is the meaning of freeze, auto freeze, and all those things. So that part 2 is going to be very, very, very important. Don't miss that also. Okay, but that I'll take later on. Why later on? Because anyway, 13th October tak, there is no reason why we should do this part 2 right now. Anyway, जो procedure है, जो CET Cell के website पे जो procedure है, वो 13th October के पहले open नहीं होगा. And कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसमें delay भी हो सकता है. So that we'll do later on, not right now. Okay, now let's move further. So now, अब मैंने 1 मिनट पहले क्या बोला कि in today's webinar we are going to study, we are going to understand how to create the options list wisely. Okay. So now what is the options list? सबसे पहले तुमको ये समझना है कि options list क्या होता है. So in very simple words, क्या होगा ना, अभी जब कैप राउंड ओपन होगा, तो तुमको बेसिकली सीईटी सेल को ये बताना है कि which college do you want, and in that college which branch you want. Okay, so basically you will be allowed to give minimum 1 and maximum 300 options on the CET Cell website. और वो जो minimum 1 and maximum 300 options जो तुम देने वाले हो ना, उसको बोलते हैं options list या options form. तो बेसिकली CET Cell के वेबसाइट पे तुम ऐसा कुछ एंटर करोगे, somewhat like this, not exactly like this.
VJTI computers. This will be your first option. VJTI, VJTI, IT, SPIT computers, ऐसे. तो basically over here you see three options. तो वैसे तुम maximum 300 option दे सकते हो. So please understand one thing, every option is basically a college course combination. I repeat, every option is a college course combination. So VJTA Comp is one option, VJTA IT is another option. Not only that, okay, इसमें अगर तुम TFWS भी जोड़ दो, okay, अब मैं इस पे डिटेल में बात नहीं करूंगा कि TFWS क्या है, वो सब हमने पहले सेमिनार में बात की है. तो इसमें अगर तुम TFWS भी जोड़ दो तो वो एक और ऑप्शन होगा. So for example, इधर तुम लिख सकते हो VJTI, okay, computers, TFWS. So then this will become a total of 4 options. Okay, so that way basically every college course combination along with TFWS is called one option. So I hope तुम सबको ये तो समझ में आ गया कि ऑप्शन वर्ड का मतलब क्या है. अब अपने को ये सीखना है कि ये जो ऑप्शन लिस्ट है ये कैसे क्रिएट की जाए, एंड दैट टू वाइजली, ऐसे ही नहीं, कैसे भी वाइजली. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, एंड बाद में तुम इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना. आई सजेस्ट कि तुम ये स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू विश टू. Sorry. Okay, let's move further. So now how to prepare the options list. तो सबसे पहली बात ये है कि if you want to prepare the options list, तो सबसे पहले you need to finalize your branch. ब्रांच से मेरा मतलब है कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, so we started with our seminars on 12th of August, and in those particular seminars we used to tell you कि जो अगले आने वाले जो 1-1.5 महीना है, इसमें तुमको 2 काम करना है, अपना ब्रांच और अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज करने हैं. ओके, सो आई होप तुम में से सब लोगों ने अब तक अपना ब्रांच फाइनलाइज कर लिया होगा. अगर तुम में से कोई ऐसा है जो अभी तक इस डायलेमा में है कि अरे मुझको कॉम्प लेना चाहिए या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लेना चाहिए या EXTC, so guys you have very few days left to fix up your dilemma. Okay, so before the cap round starts, before you start preparing the options list, you need to finalize your branch. Okay, अच्छा, अभी जब हम ब्रांच की बात करते हैं, there is one very important point which I need to talk about these branches. So I hope आजकल बहुत सारे कॉलेजेस में ये ब्रांचेस है, कंप्यूटर्स, IT, artificial intelligence and data science, artificial intelligence and machine learning, cyber security, IoT. Okay, at least 1,000 times, I repeat, at least 1,000 times. Okay, we must have told you guys that all these branches are exactly same. So I hope आज के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस में मुझे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे कि which branch is better, IT is better or data science is better, comp is better or IoT is better. Okay, now when I say same, I mean कि इनका जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट 90% सेम होता है. 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर होते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. प्लेसमेंट्स के लिए जब कंपनीज आती हैं तो दे डोंट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्प IT और IT डेटा साइंस. नो, मोरओवर व्हेन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तुम AIDS में अभी ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में करो, वाइस वर्सा करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो आई होप this point is clear for once and for all these branches are exactly same. So as far as these branches are concerned, if you have a choice, then you should go for a better college. So for example, एक example मैं जो बार बार लेता हूँ, for example, let's say you live in Borivali, St. Francis College is in Borivali, Thadomal is in Bandra. Okay, St. Francis is rank wise, 15th rank या उसके बाद आता है. Thadomal comes in the first 5 colleges. समझो तुमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, यू लिव इन बोरिवली. ओके, समझो तुमको सेंट फ्रांसिस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रहा है, बट तुमको थर्डोमल में डेटा साइंस मिल रहा है. समझो थर्डोमल में समझो तुमको डेटा साइंस मिल रहा है, बट तुमको चाहिए कॉम्प इंजीनियरिंग.
So which one will you take? Will you take data science or will you take computer engineering? Will you take data science in Thadomal? Will you take computer engineering in Francis? You live in Borivali. Okay, now I want a reply. Come on, not on the chat, but unmute yourself and give me a reply. Which branch, I mean, which college will you take over here? Thadomal. Yes, so you will take Thadomal science. Okay, that is basically the thought process which you should have. Okay, so I hope this point is clear once and for all. जब मैं बोलता हूं ना कि इन ब्रांचेस में कॉलेज को इंपॉर्टेंस देना है, तो मैं खाली इन ब्रांचेस के बारे में बोल रहा हूँ, इन ब्रांचेस के बारे में। ऑलराइट, तो इनमें से कोई भी एक ब्रांच कोई भी कॉलेज में तुमको मिलता है तो यू गो फॉर द कॉलेज। ऑलराइट, ओके। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग इज कि अगर तुमको ऑप्शंस लिस्ट बनाना है, वो अपना मेन क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर द ऑप्शंस लिस्ट वाइजली, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो उसका स्टेप नंबर 1 ये है कि फाइनलाइज योर ब्रांच। जो भी ब्रांच है तुम्हारा, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, जो भी है ब्रांच फाइनलाइज कर लो। अच्छा, अभी ब्रांच फाइनलाइज कर लिया तो कॉमन सेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलो, अब नेक्स्ट चीज क्या फाइनलाइज करनी है? कम ऑन, लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। मुझे बताओ, ब्रांच फाइनलाइज हो गया तो नेक्स्ट चीज अभी क्या फाइनलाइज करनी है? कम ऑन, अनम्यूट एंड टेल मी। कॉलेज। हाँ, सो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट चीज है वो अभी तुमको कॉलेज फाइनलाइज करना है या कॉलेज का सिलेक्शन करना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें? तो कॉलेज का सिलेक्शन करने के लिए ईदर यू ट्रस्ट अस और यू डू योर ओन रिसर्च। ओके, सिंपल। नाउ व्हेन आई से ट्रस्ट अस, व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन? सो आई होप तुम में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा अबाउट आवर रेडीमेड ऑप्शन लिस्ट जनरेटर। ओके, सो अगर तुमको हम पे विश्वास है, ओके, इफ यू ट्रस्ट द वर्क and the time which we have given for our option list generator, then you can use our ready-made option list generator. Now, although इसके बारे में हमने पहले बात की है, but very quickly I'll show you the option list generator, okay, and how you can use it. Okay, so this is our website engineeringminds.in. इधर होम पेज पे तुमको ये बैनर दिखेगा, so you can just click on this learn more. When you click on this learn more, okay, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। So here just enter your name, your email ID and your WhatsApp number. Okay, so all right, so I enter my number and I click on send OTP. All right, now once I get the OTP, I enter the same over here. All right, I enter the same over here. So 735972. I'll take all the questions after the webinar, not now, please. All right, so I enter this and I proceed further. Okay, so guys, this is our page for the option list generator. Now, what I suggest is when you are on this page, spend some time watching this video. Although मैंने अब जो वेबिनार ले रहा हूँ इसमें इसके बारे में पूरी बात करूंगा ही, but फिर भी I would suggest you spend some time watching this video. और उसके बाद all you need to do is, तुमको जो ब्रांच चाहिए accordingly you click some button over here. So let's say तुमको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ब्रांच चाहिए, so all you need to do is just click on this. So now when you click on this, you will realize you have a list ready over here. So what we have done is, in the past 3-4 months, we have done our research and we have created a list of colleges in order over here. And I repeat, in order. Now let's say you live in Mulund. So obviously you would be interested in central suburbs colleges. तो ये तुम filtering भी यहाँ use कर सकते हो. Just click on this filters. Okay. So then you have a list of colleges which are in central suburbs. So उसमें सबसे first VJTI, then VESIT, which stands for Vivekanand, then KJ Somaiya and so on. Western suburbs अगर करोगे तो basically again VJTI, SPIT ये सब. अब इसको use कैसे करना है वो भी मैं 10 मिनट के बाद बताऊंगा. So basically this is the option list generator which I was talking about. रेडीमेड है, तुमको कुछ नहीं करना है. ऑलराइट, तुमको बस इसको यूज करना है. कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा. अच्छा, तो ये पहली बात हुई कि अगर तुमको कॉलेज सिलेक्शन करना है, अगर तुमको करना है तो यू यूज आवर ऑप्शन लिस्ट जनरेटर. बट इफ यू डोंट ट्रस्ट अस,
ओके, एंड इफ यू वांट टू डू द हार्ड वर्क योरसेल्फ, तो फिर तुमको खुद का रिसर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने तुमको टूल्स प्रोवाइड किया है, एंड दैट इज द मिशन एडमिशन गाइड। तो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार मैंने ये पीडीएफ डाला है। सो ये पीडीएफ का जो पेज नंबर 2 है, दैट यू कैन यूज फॉर योर ओन रिसर्च। सो जो पेज नंबर 2 है, इसमें बेसिकली ये देखो, ये पिछले साल के कैप राउंड 1 का कट ऑफ है, ये पिछले साल के कैप राउंड 2 का कट ऑफ है, ये जेई का कट ऑफ है, एंड ये भी जेई का कट ऑफ है। So basically what you need to do is you need to make use of all these files to do your own research. And इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से सुनना। You need to click over here first. Please pay attention. Okay, I'm repeating. If you want to do your own research, तो सबसे पहले तुम इधर क्लिक करो। इधर जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास एक YouTube वीडियो आएगा। You will get to see a YouTube video. उस YouTube वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू मेक यूज ऑफ दीज फाइल्स BCDE, ओके, एंड हाउ टू डू योर ओन रिसर्च यूजिंग दीज फाइल्स। सो फर्स्ट वॉच द YouTube वीडियो विच विल गेट ओवर हियर। उसके बाद मेक यूज ऑफ द फाइल्स BCDE, एंड दैट वे यू कैन सिलेक्ट अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. So these are basically the two ways to do college selection. But I highly recommend कि now it is not the time to do your own research. अगर तुमने पहले किया होगा तो अलग बात है, बट अभी एक काम करो, you use the ready-made option list generator. Okay, so इधर तक क्या हुआ, देखो तुम्हारा ब्रांच फाइनलाइज हो गया, कॉलेज सिलेक्शन हो गया। ओके, अब तुमको क्या करना है, आज से लेके ओके 11th-12th अक्टूबर तक तुमको एक एक्सेल फाइल रेडी करना है। सो बेसिकली जो एक्सेल फाइल है ओके, इसको तुम कैसे प्रिपेयर करोगे। सो इफ यू आर यूजिंग अवर ऑप्शंस लिस्ट जनरेटर, आई रिपीट, इफ यू आर यूजिंग अवर ऑप्शंस लिस्ट जनरेटर, तो तुम कैसे इसको प्रिपेयर करोगे मैं तुमको बताता हूँ। तो समझो, दिस इज द एक्सेल फाइल, ऑलराइट। अब इसमें तुमको बेसिकली क्या करना है, कोर्स कॉलेज कॉम्बिनेशन डालना है। तुमको बेसिकली क्या करना है, कोर्स कॉलेज कॉम्बिनेशन डालना है। अब तुम कैसे इसको यूज करोगे, तो लेट्स सी दैट। ओके, लेट्स सी दैट। आई होप यू कैन सी दिस एक्सेल फाइल। सो सबसे पहले इधर देखो, मैंने कुछ एब्रीविएशंस दिया है। ओके, आई होप यू कैन सी दिस एब्रीविएशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इधर देखो मैंने, आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली। अभी जैसे SPIT है, उसके बाद देखो मैंने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में कुछ दिया है। अभी ये जो मैंने ब्रैकेट्स में दिया है ना, इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनना, प्लीज बी अटेंटिव, अंडरस्टैंड दिस। वैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब मैंने यहाँ भी लिख के दिया है। सो इट्स बेसिकली लाइक दिस के ऑल द कॉलेजेस इन दिस टेबल, ओके, आई रिपीट, ऑल द कॉलेजेस इन दिस टेबल हैव कंप्यूटर्स एंड IT एक्सेप्ट दिस SPIT। तो VJTI, DJ संघवी, थर्डोमल, फादर वैगनल, सब में कंप्यूटर एंड IT का तो ब्रांच है, बट उसके सिवाय कोई कोई कॉलेजेस में एडिशनल ब्रांचेस है। जैसे फॉर एग्जांपल जो DJ संघवी कॉलेज है, उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ऐसे। तो ये ना एडिशनल ब्रांचेस है। अभी अगर तुमको ऑप्शंस लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज बी अटेंटिव। अभी समझो योर फैमिली इनकम इज लेसर देन 8 lakhs and you are eligible and you also have an income certificate. I repeat, let's say your family income is lesser than 8 lakhs, okay, and you also have income certificate. So now if you have income certificate, your family income is lesser than 8 lakhs, then you are also eligible for TFWS. तो वो एक और क्राइटेरिया इसमें डाल देते हैं कि तुम TFWS के लिए भी एलिजिबल हो। But let's say you are open to both, that means you are open to TFWS and non TFWS also. तो तुम अपना ऑप्शंस लिस्ट कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे, तुम लिखोगे VJTI कंप्यूटर्स TFWS, फिर उसके बाद आएगा VJTI, ऑलराइट, IT TFWS, ओके। अभी उसके बाद आएगा
SPIT computers, okay, TFWS, ओके। अब ये SPIT में ना आईटी का ब्रांच नहीं है, आईटी का ब्रांच नहीं है, ओके। तो SPIT में ये ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AI एंड ML, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। तो नेक्स्ट तुम्हारा कैसे होगा, नेक्स्ट तुम्हारा ऐसा होगा SPIT, ओके, डेटा कौन सा था, SPIT machine learning, TFWS, and then finally you will write SPIT data science TFWS, ओके। अभी इसके बाद जो सिक्स्थ ऑप्शन होगा, इधर सिक्स्थ ऑप्शन होगा, क्या तुम इधर देख के बोल सकते हो सिक्स्थ ऑप्शन क्या होगा? कम ऑन, कैन यू टेल मी? डीजे संघवी कंप्यूटर। वेरी गुड। तो सिक्स्थ ऑप्शन होगा डीजे संघवी कंप्यूटर्स TFWS, डीजे संघवी IT TFWS। कॉम्प IT मैंने इधर पैरेंथेसिस में नहीं दिया है, वो अज्यूम्ड है कि वो है। फिर डीजे संघवी डेटा साइंस, डीजे संघवी ML, डीजे संघवी साइबर सिक्योरिटी, डीजे संघवी डेटा साइंस, ऐसे। ऑलराइट, अभी ये सब TFWS के तुमने ऑप्शंस डाल दिए, ठीक है, तो इतना हो गया। नाउ कैन यू टेक अ गेस, एक बार सब TFWS का ऑप्शंस हो गया, उसके बाद तुम क्या करोगे? कैन यू टेक अ गेस? कम ऑन, कैन यू टेक अ गेस? नॉन TFWS। हाँ, अभी तुम क्या करो, सेम ऑप्शंस फिर से डालो बट नॉन TFWS, ओके। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू विल नॉट स्टॉप ओवर हियर, you will put TFWS options for all these colleges, all these colleges, जितना तुमको लगता है तुमको डालना चाहिए और जितना तुमको चाहिए, ओके। तो ये सभी कॉलेजेस का TFWS ऑप्शंस डालने के बाद अभी उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा होगा, अभी लेट्स से तुम्हारा परसेंटाइल है 99.99, तो ऑब्वियसली तुम, यू आर श्योर तुमको इसमें से कहीं मिलने वाला है, तो तुम क्या करो, फिर नेक्स्ट ईयर डालो VJTI कॉम, ओके। देखो ये नॉन TFWS, उसके बाद VJTI, ऑलराइट, IT, VJTI IT। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, ओके, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली इनकम 8 लाख से कम नहीं है, ओके, दैट मींस इफ यू आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ TFWS, तो ऑब्वियसली तुम ये सब ऑप्शंस डालोगे ही नहीं, तुम डायरेक्टली यहां से शुरू करोगे, यहां से। So this is the way you will prepare the Excel sheet. Okay. I hope, I'm sure इसके बारे में तुम्हारे माइंड में कुछ डाउट्स होंगे, so I'll clear those doubts also. For time being, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, take a screenshot of this. Take a screenshot of this. Okay. I'll just put a message regarding the next webinar. Okay, just give me 1 minute. I'll just update everybody on the WhatsApp group that our next webinar will be delayed slightly. Okay, so just give me 1 minute for that. All right, ठीक है। So I hope तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके, और अभी तुमको समझ में आ गया ये एक्सेल फाइल कैसे बनाना है। अभी जब तुम ये एक्सेल फाइल बना रहे हो तो तुमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि यू आर सपोज टू यूज द 3D रूल। अभी तुम्हारे माइंड में कुछ डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना। 3D रूल, ये इसके बारे में तुम्हें पता होगा दैट यू आर सपोज टू यूज द रूल ऑफ ड्रीम, डिफिकल्ट, डेफिनेट। इसका मतलब तुम जब ऑप्शन लिस्ट बनाओगे तो सबसे पहले वो कॉलेज डालो वेयर यू ड्रीम ऑफ गोइंग, so that could be VJTI, SPIT. So these are the colleges जहां हो सकता है तुम्हें पता है कि तुमको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, you only dream of going over there, but still you should put those colleges सबसे पहले. Then you put those colleges where it is difficult to get admission, but still you may get admission over there, may, okay. तो उसके बाद समझो तुम डालोगे डीजे संघवी, थर्डोमल, जो तुम्हारे लिए शायद डिफिकल्ट है बट मिल सकता है, एंड देन डेफिनेट आता है, ओके। So
इन केस यू डोंट नो, मैं इधर लिखता हूं 3D का फुल फॉर्म है ड्रीम, ड्रीम, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एंड डेफिनेट, एंड डेफिनेट. सो सबसे पहले तुम वो कॉलेज डालो वेर यू ड्रीम ऑफ गोइंग बट यू मे नॉट गेट, देन द डिफिकल्ट वंस, एंड देन यू पुट दोस कॉलेजेस where you are sure that you will definitely get the admission over there. Okay, so this should always be the sequence. अभी बहुत लोग बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर, अच्छा सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमने ये जो ऑप्शंस लिस्ट बनाया है ना, ओके, वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर लिस्ट यूजिंग द 3D रूल. ओके, ड्रीम, डिफिकल्ट, डेफिनेट. अब बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि सर मेरा परसेंटाइल तो खाली है 91, मुझे पता है मेरे को VJTA SPIT में नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्यों ये सब कॉलेज डालूं? सो I have three reasons because of which you should use the 3D rule. You should always start with the dream colleges. Okay. Reason number 1, मेरे reasons ध्यान से सुनना. पहला रीजन तो ये है, ऑब्वियस रीजन ये है कि अगर तुम डालोगे तो प्रॉब्लम क्या है, तुमको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी पे करना है. एंड ऐसा थोड़ी ना है कि सीटी सेल के ऑफिस में कोई बंदा बैठा है, वो जब तुम्हारा ऑप्शन फॉर्म देखेगा तो तुम्हारे कंप्यूटर से बाहर निकल के तुमको गाली देगा, बोलेगा अरे वेड़ा है इसका. ऐसा थोड़ी है. ओके, तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है तुमने क्या ऑप्शन डालने वाला है, तो व्हाई नॉट जस्ट पुट इट. ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, रीजन नंबर 2 व्हाई यू शुड यूज द 3D रूल. रीजन नंबर 2, पहला रीजन है कि हर्ज क्या है डालने में, डालो. दूसरा रीजन नंबर 2 व्हाई यू शुड यूज द 3D रूल. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मेरे ख्याल से. रीजन नंबर 2 ये है ना कि अगर तुम 3D रूल यूज करते हो ना तो तुमको दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा. ओके, वरना तुमको दिमाग चलाना पड़ेगा एंड एट टाइम्स यू विल गो रॉन्ग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज दैट इफ यू आर नॉट यूजिंग द 3D रूल तो तुम फिर सोचोगे कि अरे ये मार्क्स पे मेरे को ये कॉलेज मिलेगा क्या, ये मार्क्स पे मेरे को वो कॉलेज मिलेगा क्या, एंड यू विल एंड अप स्पेंडिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन मेकिंग दैट डिसीजन. एंड ऐसे भी हो सकता है कि कभी तुम्हारा सीक्वेंसिंग गलत हो जाए या कोई कॉलेज तुमसे छूट जाए, ये भी हो सकता है. ऑलराइट, सो जो काम कंप्यूटर तुम्हारे लिए करने वाला है, जो काम सॉफ्टवेयर, सीईटी सेल का सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए करने वाला है, वो काम तुम क्यों करते हो? ओके, तुम सब सीक्वेंस डाल दो, फिर वो सॉफ्टवेयर को जो काम करना है वो करेगा. तुम्हारे सीईटी के मार्क्स के हिसाब से, तुम्हारे रैंकिंग के हिसाब से वो तुमको कॉलेज असाइन करेगा. So why you are taking the trouble of doing that work? Let the software do that work for you. ये हुआ रीजन नंबर 2. एंड रीजन नंबर 3 ये है, देखो बहुत बार क्या होता है ना, तुम्हारा जो परसेंटाइल होता है, रैंकिंग होता है, वो ऐसा होता है कि तुमको कोई टॉप का कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव 98 परसेंटाइल. तुमने पास्ट ईयर का कट ऑफ देखा और तुमने रियलाइज किया कि अरे VJTI तो शायद मेरे को नहीं मिलेगा, तो मैं VJTI डालता ही नहीं. बट who knows this time the IT branch of VJTI may close at 98 percentile. ओके, या फिर दूसरा एग्जांपल समझो, तुम्हारा परसेंटाइल 97 है, लास्ट ईयर समझो है SPIT का ओके कट ऑफ था 98 परसेंटाइल, बट हो सकता है इस बार वो एक कम हो जाए, वो किसको पता है. सो बेसिकली इफ यू आर नॉट यूजिंग द 3D रूल, you may not put some of the top colleges, okay, and you may prevent good luck coming your way. हो सकता है कि गुड लक, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे आ रही है बट उसको तुम इग्नोर कर रहे हो. ओके, एंड बाद में तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे से कम परसेंटाइल वाले को वो अच्छा वाला कॉलेज मिल गया. ओके, सो ऑल इन ऑल यूज द 3D रूल, ओके, एंड बी हैप्पी. बट फिर भी कोई लोग बोलते हैं नहीं सर मेरे को तो 70 परसेंटाइल है, मैं VJTI क्यों डालूं? तो ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है ना तो यू कैन रिमूव सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस इफ यू वांट. ओके, एज पर योर परसेंटाइल तुम ऊपर का कुछ कॉलेजेस निकाल दो अगर तुमको चाहिए तो. सो आई डोंट सजेस्ट डूइंग दैट, बट स्टिल अगर तुमको लगता है तो तुम निकाल दो, और तो मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता हूं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब ये 3 स्टेटमेंट को मैंने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि ये तीनों में एक साथ डिस्कस करने वाला हूं. अब कोई स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर प्लीज कीप योर माइक इन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ स्पेशली व्हेन यू आर स्नीजिंग. सो कोई स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर विद इन द सेम कॉलेजेस ब्रांच का सीक्वेंसिंग कैसे करने का है.
तो पहली बात तो ये कि ब्रांच का सीक्वेंसिंग स्पेशली तभी मैटर करेगा जब तुम कॉम्स रिलेटेड ब्रांचेस ले रहे हो, ठीक है। तो अभी ये एक क्वेश्चन हुआ कि विद इन द सेम कॉलेज हाउ टू डू सीक्वेंसिंग ऑफ ब्रांच। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर मैं पहले कॉम डालूं कि पहले आईटी डालूं, या फिर पहले डेटा साइंस डालूं या पहले मशीन लर्निंग डालूं। ओके, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर टीएफडब्ल्यूएस किधर डालने का, ऊपर डालने का, नीचे डालने का। ओके, तो इसका भी मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो बेसिकली ये जो दो क्वेश्चंस है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, इनका जो आंसर है ना वो एक थंब रूल में छुपा है, एक थंब रूल। और थंब रूल क्या है? द थंब रूल इज द मोर यू वांट समथिंग द हायर अबाउ इट शुड बी। I repeat, the more you want something, the higher above it should be. So concept एकदम सिंपल है। ओके, देखो, अगर तुमको सीईटी सेल का वेबसाइट बोलता है, अगर तुमको सीईटी सेल का वेबसाइट बोलता है कि ये ले, मैं तेरे को दोनों सीट देने के लिए रेडी हूं, द वन विद टीएफडब्ल्यूएस एंड ऑल्सो द वन विदाउट टीएफडब्ल्यूएस। अब तू बता तेरे को क्या चाहिए। हाँ, तो तुमको क्या चाहिए, तुम क्या लोगे बोलो? अगर दोनों राइट तुमको मिलने वाला है तो क्या लोगे बोलो? बोलो। ऑब्वियसली तुम टीएफडब्ल्यूएस वाला लोगे। तुम्हारा जो फीस है वो ऑलमोस्ट 1/4 हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज तुमको जितना ज्यादा चाहिए वो उतना ऊपर आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। सो तुम सबको टीएफडब्ल्यूएस सीट चाहिए, सो इफ यू आर एलिजिबल तो पहले टीएफडब्ल्यूएस वाला ऑप्शन डालो। ओके, सिमिलरली जहां तक ये क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग ऑफ ब्रांचेस विद इन द सेम कॉलेज, ओके, तो वैसे तो मैंने बोला है कि ऑल द कॉम्प रिलेटेड ब्रांचेस आर सेम। ओके, कॉम्प लो, आईटी लो, सब सेम है। बट फिर भी अगर तुमको चाहिए तो तुम चाहिए तो कॉम्प का पहला ब्रांचेस डाल दो। समझो वीजेटीआई कॉम्प डालो, ठीक है, वीजेटीआई आईटी डालो, वीजेटीआई आईटी डालो, ठीक है। अच्छा, अभी कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग दे आर वेरी क्लियर कि नहीं सर हमको मशीन लर्निंग ही करना है, हमको डेटा साइंस ही करना है। सो इट्स ओके, नो हार्म इन दैट। तो अभी समझो तुमको अगर डेटा साइंस ही करने का है, ओके, लेट्स से एन एग्जांपल, तुमको डेटा साइंस ही करने का है, ओके, तो तुम क्या करो, जब एसपीआईटी का ऑप्शन डालोगे तो इस तरह से डालो, एसपीआईटी डेटा साइंस, फिर तुम डालो एसपीआईटी मशीन लर्निंग या एसपीआईटी कॉम, फिर तुम डालो एसपीआईटी मशीन लर्निंग, ऐसे। सो बेसिक थंब रूल इज दिस वन, द मोर यू वांट समथिंग द हायर अबाउट इट शुड बी इन द लिस्ट। सिंपल रूल है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी कोई कोई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर जो ऑप्शंस फॉर्म हम भरेंगे इसमें ईडब्ल्यूएस का डालने का क्या? तो द आंसर इज नो। मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, तुमने अभी जब रजिस्ट्रेशन किया, हाँ, तो तुमको पूछा रहेगा ना कि तुम ईडब्ल्यूएस में आते हो कि नहीं आते हो। एम आई राइट? यस और नो? यस यस, ठीक है। एंड अगर तुम ईडब्ल्यूएस में आते हो तो तुमने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपलोड किया होगा। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। हाँ, अगर तुमको टीएफडब्ल्यूएस सीट चाहिए ना, टीएफडब्ल्यूएस सीट, तो टीएफडब्ल्यूएस सीट का ना तुमको अलग से ना ऑप्शन तुमको डालना पड़ता है इन ऑप्शंस फॉर्म। यानी ऑप्शंस फॉर्म में तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई मेरे को टीएफडब्ल्यूएस वाला सीट चाहिए, तो ही तुमको सीट अलॉट होता है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। बट ईडब्ल्यूएस का जो वर्किंग है ना वो स्लाइटली अलग है। जब तुम ऑप्शंस फॉर्म भरोगे ना तो तुमको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं डालना है। आई रिपीट, तुमको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं डालना है, ओके। अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो ना तो जो सॉफ्टवेयर वो खुद ही पहले ट्राई करेगा तुमको ईडब्ल्यूएस में सीट अलॉट करने का। आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट द सॉफ्टवेयर विल ट्राई टू अलॉट योर सीट इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तुमको सीट अलॉट नहीं होता है तो ही वो तुमको ओपन कैटेगरी में अलॉट करेगा, ओके। तो ये जो ईडब्ल्यूएस का जो सीट अलॉटमेंट है ना वो बाय डिफॉल्ट होता है, तुमको उसके लिए अलग से ऑप्शन या चॉइस कोड डालने का जरूरत नहीं है, ओके। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में बाय द वे इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में भी, नेक्स्ट वेबिनार में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज के
जो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑप्शन, वो हमेशा वो वाला डालना जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो फॉर एग्जाम्पल समझो तुमको करने का है केमिकल इंजीनियरिंग. आई रिपीट, केमिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, तुम्हारा सिर्फ 80% है, 80% है. ठीक है, तो तुम क्या करो, ऑप्शन नंबर 1 में ICT डालो, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी डालो. ऑल दो तुमको वो नहीं मिलेगा. ऐसा क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा. ओके, फॉर टाइम बिंग तुमको बता देता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन हमेशा ऑटो फ्रीज हो जाता है, ऑटो फ्रीज. तो हमेशा याद रखना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ओके, तुम्हारा ऑप्शन फॉर्म का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो वाला डालना जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तुमको मिलना, या फिर वो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो तुमको मिल गया तो बस, बाकी तुमको और कुछ नहीं चाहिए. Okay, so these are the important points which you should remember. If you want, you can take a screenshot of this. Okay, अभी फाइनली एक क्वेश्चन जो मैंने अपने सेमिनार्स में भी आंसर किया था, फिर एक बार बोलता हूँ. मुझे बहुत लोग फिर से व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि सर मेरा तो परसेंटाइल इतना नहीं है, तो मुझको तो ये कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो मैं एवरेज कॉलेज में या बिलो एवरेज कॉलेज में एडमिशन लूं, और शुड आई टेक अ ईयर ड्रॉप और समथिंग, और शुड आई डू BSc. सो गाइज द आंसर इज के BSc करके कुछ मतलब नहीं है. डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बात की थी सेमिनार में. ईयर ड्रॉप लेके भी मतलब नहीं है, क्योंकि वेरी ऑफन हमने देखा है ईयर ड्रॉप लेने के बाद भी ना नेक्स्ट ईयर इससे कम मार्क्स ही आता है, ज्यादा नहीं आता है. ठीक है, सो व्हाट यू शुड डू इज दैट अगर तुमको कम परसेंटाइल आया है, ओके, तो प्रिपेयर योरसेल्फ टू टेक एडमिशन इनटू एन एवरेज or below average college. Okay, go there, study well, get a 10 pointer throughout, and trust me, after you graduate, okay, you will be almost at par with students of VGATI, SPIT and so on. Okay, जो एवरेज कॉलेजेस है वहां भी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं. अगर कंपनीज नहीं भी आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन अप्लाई फॉर प्लेसमेंट, ओके, ऑफ कैंपस का मतलब बाहर से इंडिपेंडेंटली भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, मोर ओवर अगर तुमको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो कॉलेजेस होती हैं, स्पेशली इन US एंड इवन इन इंडिया, ओके, दे लुक एट 2 थिंग्स. दे लुक एट द यूनिवर्सिटी एंड योर मार्क्स. आई रिपीट, यूनिवर्सिटी एंड योर मार्क्स. ओके, तो यूनिवर्सिटी सबका मुंबई यूनिवर्सिटी होने वाला है. तुम अथर्वा में हो या तुम DJ संघवी में हो, तुमको जो सर्टिफिकेट मिलेगा इट विल बी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी. एंड अगर तुम्हारा मार्क्स थ्रू आउट 10 पॉइंटर है, ओके, अगर बेस्ट है, तो यू स्टैंड एन इक्वल चांस एज अदर्स. ओके, सो इवन इफ यू गॉट लेसर परसेंटाइल, डोंट लूज हार्ट, टेक एडमिशन इन एन एवरेज कॉलेज. कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रॉपरली इन डिटेल how to prepare the options list. Okay, so the part 1 of the webinar gets over here.